students, this is the first chapter of class 11th. The name of the chapter is Some Basic Concepts of Chemistry. As you know, from the name itself it is clear. Some basic things which are going to be used later on again and again, we will be studying in this chapter. Now it's a pure mathematical chapter. And the quantity of mathematics you will be getting in this chapter, you will not get in any other chapter of physical chemistry. ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री में और चैप्टर्स नहीं है. आपको पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. तो 11th में फिजिकल केमिस्ट्री के और भी चैप्टर है, जैसे सेकंड चैप्टर है, 5th चैप्टर है, उसके बाद 6th है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है. लेकिन उसमें और इसमें बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है. ये प्योर मैथमेटिकल चैप्टर है. Actually, the chapter is known for 5 main topics. The first and the most important topic of this chapter, on which rest of the other topics are going to depend, is the mole concept. A brief idea of the mole concept you already have in class 9th, but that is only a brief idea. The second mathematical topic is percentage composition. Percentage composition of a compound, its empirical and molecular formula. Third is chemical stoichiometry and limiting reagent. Fourth main topic, different methods to show the concentration of a solution. इसी में ही हम डाइल्यूशन फार्मूले के बारे में भी पढ़ते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला. And the fifth and the last topic is laws of chemical combination. In the book it's given in the beginning, but I used to do in the last. The main is the mole concept, which we will have the first. Before we do the mole concept, I will tell you one thing. We will have atomic mass and molecular mass. We will come to know about this concept, atomic mass and molecular mass. As the name itself indicates, atomic mass, mass of atom, molecular mass means mass of molecule. You must be knowing atom are the smallest particle, that is atomic mass. When two or more atoms of same element or different element, when they combine, molecules are formed. जैसे H is the atom of hydrogen, H2 is the molecule of hydrogen. O is the atom of oxygen, O2 is the molecule of oxygen. H2O is also molecule, CO2 is a molecule. Means when two or more atoms of same element or of different element, when they combine, they form the molecule. These are the microscopic particles. To express the mass of an atom or to express the mass of molecule, we can write their masses in gram or kilogram also.
But if you are expressing the masses of these particles in gram and kilogram, the value is going to be so small that manipulation of the value is going to be very, very difficult. Mass of atom something into 10 to the power minus 30, 10 to the power minus 32 gram or kilogram. These kind of value are going to get if you are expressing the mass of these particles in gram or kilogram. Therefore, to express the mass of these particles, these microscopic particles like atom, molecule, ion, electron, proton, to express the mass of these particles, a new unit was introduced which is called atomic mass unit, AMU, which is also called U. Atomic mass unit or U. एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास या एमयू का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज वी हैव द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑल आर हैविंग डिफरेंट मासेस, इन विच वी हैव द एटम ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सब एटम हैं जिनके मासेस अलग अलग हैं। किसी एक एटम को स्टैंडर्ड ले लिया, जैसे मान लो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड ले लिया। अब स्टैंडर्ड लेने का मतलब कि उसका मास ग्राम किलोग्राम में चाहे कुछ भी हो, विच इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, वही 10 के पावर माइनस 32, 34 ग्राम किलोग्राम। लेकिन उसको एएमयू में मान लिया इट इज इक्वल टू 1 एमयू, और बाकी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनको हम फिर उससे कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन से कंपेयर। If the helium is 4 times heavier than hydrogen, atom of the helium is 4 times heavier than hydrogen, and if hydrogen is of 1 mu, of course helium is going to be of 4 mu. ऑक्सीजन का एटम मान लो हाइड्रोजन के 16 गुना है, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास यदि 1 mu है तो ऑफ कोर्स द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 16 mu. दैट्स द कॉन्सेप्ट। किसी एक को स्टैंडर्ड लेते हैं, किसी एक एलिमेंट के एटम को स्टैंडर्ड ले लेते हैं, और बाकी एलिमेंट के एटम्स के मास को उस एलिमेंट के एटम से हम कंपेयर करते हैं। इन द करंट सिनेरियो हम कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12, इसको स्टैंडर्ड लेते हैं, और हम मान के चलते हैं कि C12 एटम का जो मास है इज इक्वल टू 12 एमयू। ये 1 एमयू के बराबर नहीं है, 12 एमयू के बराबर है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि 12 एमयू विल बी इक्वल टू मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम माने कार्बन एटम, कार्बन के एक एटम का मास हुआ 12 एमयू, तो 1 एमयू की वैल्यू कितनी हुई? 1 एमयू की वैल्यू हो गई 1/12 द मास ऑफ C12। अब मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एमयू है, 16 एमयू। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एमयू होना क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब ये हुआ कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज ऑफ 16 एमयू, या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ 1 एमयू, और 1 एमयू की वैल्यू अभी हमने पीछे देखी थी कि 1 एमयू कार्बन का 1/12 था, इट इज 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे किसी भी एटॉमिक मास यूनिट में किसी भी एलिमेंट के एटम को मास को हम कार्बन एटम से कंपेयर करते हैं, और डायरेक्ट कार्बन से भी कंपेयर नहीं करते।
कार्बन के 1/12 से कंपेयर करता है। वी डू नॉट कंपेयर विद अ कार्बन, वी कंपेयर विद 1/12 ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का 1/12 जो है इट्स इक्वल टू 1 MU। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो x और y दो ऑब्जेक्ट्स हैं। x का मास जो है वो 5 किलो है और y का मास जो है वो 10 किलो है। अब x और y के मास को आप कैसे कंपेयर करोगे? x और y के मास को कंपेयर करने के दो तरीके हैं। या तो ये बोल दो कि y is twice heavier than x, या तो ये बोल दो, या आप ये भी बोल सकते हो कि y is 10 times heavier than 1/5 of x। हुआ नहीं हुआ? पहले में हमने y को डायरेक्ट x से कंपेयर किया और दूसरे में 1/5 of x से कंपेयर किया, क्योंकि 1/5 of x की जो वैल्यू है वो 1 kg के इक्वल है। वैसे ही यहाँ पे हम किसी एलिमेंट के मास को कार्बन से डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते, कार्बन के 1/12 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कार्बन का मास हमने माना है 12 MU और 12 किसी नंबर का फैक्टर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 1/12 ऑफ कार्बन की वैल्यू होगी 1 MU, जो हर किसी का फैक्टर होगा, हर नंबर का फैक्टर होगा। इसलिए इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद directly with the carbon, we compare with the 1/12 of carbon. जैसे atomic mass of silver is 108 MU, वही चीज, इसका मतलब ये हुआ कि 1 atom of silver is of 108 MU। 108 MU का मतलब 108 times of 1 MU। 108 times of 1 MU का मतलब ये हुआ कि 1 atom of silver is 108 times of 1/12 of कार्बन। ऑक्सीजन का एटम कार्बन के 1/12 का 16 गुना था, जबकि सिल्वर का एक एटम 1/12 ऑफ कार्बन के 108 टाइम्स है। यही मतलब हुआ AMU का। सिर्फ एटॉमिक मास ही नहीं, चाहे एटम का मास हो, मॉलिक्यूल का मास हो, इलेक्ट्रॉन का मास हो, प्रोटॉन का मास हो, किसी आयन का मास हो, किसी भी पार्टिकल का मास यदि AMU में लिखा है तो AMU से मतलब ही हुआ कि उस एक पार्टिकल का मास कार्बन के 1/12 से कितने गुना हेवी है। यदि किसी पार्टिकल का मास XAMU है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कुछ हो, इसका मतलब दैट पार्टिकल इज x टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन। यदि वो पार्टिकल एटम है तो वो उसका एटॉमिक मास होगा, यदि वो पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। दैट्स एटॉमिक मास की फिर डेफिनेशन क्या होगी? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट शो करता है, क्या शो करता है? हाउ मेनी टाइम्स द एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से हमें पता चलता है कि उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन के 1/12 से कितने टाइम्स हेवी है। That's the atomic mass. Atomic mass oxygen 16 MU, atomic mass of silver 108 MU, atomic mass of sulfur is 32 MU. Meaning the same. One atom of sulfur is 32 times of 1/12 of carbon. Similarly, we have molecular mass. Molecular mass मतलब mass of molecule। जैसे मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज H2O, इट इज इक्वल टू 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस
ऑक्सीजन 1 है तो प्लस 16, 2 into 1 plus 16 it is equal to 18. 18 mu या 18 u, u भी u का मतलब यूनिफाइड मास है, मीनिंग द सेम। इसका मतलब यही हुआ कि 1 molecule of water H2O is of 18 mu. It means 18 times of 1/12 the mass of carbon. कार्बन के 112 से वाटर का एक मॉलिक्यूल 18 गुना हैवी हो, which I already said. कि किसी भी पार्टिकल का मास mu में एक्सप्रेस है और x mu के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि वो पार्टिकल x टाइम्स हेवियर है 1/12 ऑफ कार्बन से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 6H12O6। अब यहाँ 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन का मतलब हुआ 6 into 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है, प्लस 12 हाइड्रोजन का मतलब 12 into 1, प्लस 6 ऑक्सीजन का मतलब 16 into 6, ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96 इक्वल टू 188। इसका मतलब हुआ कि 1 molecule of glucose is 180 times of 1/12 the mass of carbon। तो जैसे हम मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करते थे वैसे ही, एटॉमिक मास को जैसे हम डिफाइन करते थे वैसे ही मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, अब देखो ये भी आपको ध्यान देना है, वहां एटॉमिक मास डिफाइन करते समय मैंने वर्ड यूज किया था एलिमेंट, और यहां मैंने वर्ड यूज किया सब्सटेंस। मतलब समझ में आया इसका क्यों मैंने यूज किया? Why did I use? वहां एलिमेंट, यहां सब्सटेंस, क्योंकि वो एटम है, एटम का मास है और ये मॉलिक्यूल का मास है। एटम जो है वो किसी एलिमेंट का ही हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का भी हो सकता है और किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। जैसे O2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विच इज एन एलिमेंट, H2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विच इज एन एलिमेंट, N2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन विच इज एन एलिमेंट, P4 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस विच इज एन एलिमेंट, H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच इज अ कंपाउंड, CO2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ कंपाउंड। समझ में आया? माने एक एलिमेंट का तो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन एक कंपाउंड का हमेशा मॉलिक्यूल ही होता है, क्योंकि कंपाउंड का मतलब ही होता है व्हेन 2 or more elements combine chemically in a fixed ratio of mass। अब 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, इसका मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा एटम ही होंगे, और 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है एटम तो सिर्फ एलिमेंट का होगा, जबकि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, इसलिए मैंने वहां वर्ड यूज किया सब्सटेंस। यहां मैं कंपाउंड लिखता तो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, यहां मैं एलिमेंट लिखता तो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया सब्सटेंस। This substance may be a molecule or this substance may be an element or it may be a compound। तो किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ये इंडिकेट करता है कि उस सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल कार्बन के 112 से कितने टाइम्स हेवी है। वही सेम डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स a molecule of that substance is heavier than 1/12 of carbon। बिल्कुल वही चीज, कोई एटम जो है वो कार्बन के 112 से कितने टाइम हेवी है, वो उसका एटॉमिक मास है, और कोई मॉलिक्यूल कार्बन के 112 से कितने टाइम हेवी है, वो उसका मॉलिक्यूलर मास है। एवरेज एटॉमिक मास,
एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूल एग्जाम में हमेशा टीचर ऑलवेज प्रेफर टू गिव इट, और है बहुत आसान। आपने देखा होगा कई सारे एलिमेंट हैं जो अपने आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। They are found in the form of their different isotopes, and the different isotopes are having different atomic mass. जैसे अब कार्बन है, नेचर में कार्बन 12 के भी फॉर्म में पाया जाता है, 13 के भी फॉर्म में पाया जाता है, 14 के भी फॉर्म में पाया जाता है। ये अलग बात है कि ज्यादातर कार्बन 12 के फॉर्म में पाया जाता है। 13 और 14 के फॉर्म में पाए जाने वाले कार्बन की क्वांटिटी परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन होती है। आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि होता ही नहीं है। यदि 100% कार्बन 12 के फॉर्म में पाया जाता तो आप कह देते कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही होगा। लेकिन यदि मान लो 1% भी कार्बन 13 या 14 के फॉर्म में पाया गया, तो जब उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे, उसकी जो एवरेज वैल्यू निकालोगे, तो वो 12 तो आएगी नहीं। 12 आएगी क्या? 12 नहीं आएगी, वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, पॉइंट्स में आ जाएगी। जैसे मान लो टेस्ट लिया और 20 बच्चों ने टेस्ट दिया, 10 नंबर का टेस्ट लिया। 20 बच्चों में 19 बच्चों के 8 नंबर है, लेकिन किसी एक का 8 नहीं आया, 9 आ गया। तो क्लास के जो एवरेज मार्क्स है, यदि 20 के 20 8 होते तो क्लास का एवरेज मार्क्स भी 8 ही होता। लेकिन एक के भी 9 मार्क्स आ गए, तो जो क्लास का एवरेज मार्क्स होगा वो अब 8 तो रहा नहीं, 8.00 समथिंग हो सकता है, लेकिन इट विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 8। वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि वहां फिर हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई सम एलिमेंट्स हैव एटॉमिक masses in fraction. Did you understand the meaning? Certain elements exist in nature in the form of their different isotopes. Different isotopes having what? Different atomic masses. इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, and having different percent abundance. परसेंट abundance समझ गए ना? माने नेचर में अलग अलग आइसोटोप्स के पाए जाने की परसेंटेज, and that is why the average atomic mass of these elements is in fractions, क्योंकि वहां हमें एटॉमिक मास की एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। और एटॉमिक मास की जब एवरेज वैल्यू निकालोगे, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 1 भी होता है, हाइड्रोजन 2 भी होता है, हाइड्रोजन 3 भी होता है। ये अलग बात है 2 या 3 की परसेंटेज बहुत कम होती है। 99.99% हाइड्रोजन H1 के ही फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन 1 के ही फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन फिर भी 2 या 3 के फॉर्म में भी थोड़ा बहुत पाया जाए, लेकिन पाया तो जाता है। देयरफॉर ऐसे जगहों पे हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास, अब हाइड्रोजन है, चलो इसका तो 1 ही है,
क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास भी निकालोगे तो 1.0000 समथिंग थर्ड या फोर्थ प्लेस पे आएगा, तो 1 ही मान के चलते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट हैं जैसे क्लोरीन है, नेचर में 35 के फॉर्म में पाया जाता है, 37 के फॉर्म में पाया जाता है। 35 यदि 70% है तो 70 करीब 30% होता है, और सॉरी 37 30% होता है। तो उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो वो हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? लेट एन एलिमेंट हैज डिफरेंट आइसोटोप्स या हैज 2 isotopes E1 and E2 with atomic masses M1 and M2 respectively. If percent abundance of these 2 isotopes in nature is X1 and X2, its average atomic mass मैंने यहां पे लिखा है कि एक एलिमेंट है जो 2 फॉर्म में पाया जा रहा है, E1 और E2। इस E1 और E2 के एटॉमिक मास, चूंकि दोनों आइसोटोप्स है तो एटॉमिक मास अलग होगा, ये है M1 और M2। इनकी परसेंट एबंडेंस माने E1 जो है वो नेचर में X1% है और E2 जो है वो नेचर में X2% है। सीरियल नंबर, आइसोटोप्स, उनके एटॉमिक मास और उनकी परसेंट इन नेचर। 2 आइसोटोप हैं, एक ही एलिमेंट के 2 आइसोटोप E1 और E2। E1 का एटॉमिक मास है M1, E2 का एटॉमिक मास है M2। नेचर में E1 जो है वो X% है या X1% है और E2 जो है वो X2% है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ E M बार हो जाएगा, M बार इज इक्वल टू, M बार उसका एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू, 2 फॉर्म है, M1 X1% है और M2 X2% है। तो वेटेड मीन निकाल लो, ये हो गया M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2, M3 इंटू X3 यदि मान लो तीसरा फॉर्म भी है, अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X3। और सारे परसेंटेज एबंडेंस का सम तो 100 ही आना है, तो डिनोमिनेटर में तो 100 ही आएगा। वेटेड मीन निकालते हैं ना, वही है। मान लो 4 जनों के मार्क्स है 5 और 6 जनों के मार्क्स है 7, तो एवरेज मार्क्स के लिए 4 इंटू 5 या 6 इंटू 7। समझ में आ गया? इस तरह से हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। सर एक बार वापस बता दो। मैंने कहा कि एक एलिमेंट E है, उसके 2 आइसोटोप्स हैं, 2 फॉर्म में वो नेचर में पाया जा रहा है। एक फॉर्म का एटॉमिक मास M1 है, दूसरे का एटॉमिक मास M2 है, तीसरे का मान लो एटॉमिक मास M3 हो। नेचर में जिसका एटॉमिक मास M1 है वो X1% है, जिसका एटॉमिक मास M2 है वो X2% है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास M बार हो गया M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 प्लस M3 इंटू X3 अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X3
जो कि 100 के ही बराबर है। अलग अलग फॉर्म्स है और उनकी अलग परसेंट एबंडेंस है, तो सारे फॉर्म्स की परसेंट एबंडेंस का सम तो 100 ही होगा। तो अपॉन x1 plus x2 plus x3 plus x4। दिस इज द वे वी फाइंड द, एक तरह का एवरेज है, वेटेड मीन बोलते हैं इसको, वेटेड मीन, एवरेज निकालने का एक तरीका है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ये बहुत आसान है। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनकी परसेंटेज दी हुई होती है, उनका एटॉमिक मास दिया होता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है। और कई बार एवरेज एटॉमिक मास दिया होता है, परसेंटेज दिया होता है, एक का एटॉमिक मास दिया, दूसरे का एटॉमिक मास पूछ दिया, या एवरेज एटॉमिक मास दिया है, M1 दिया, एक का एटॉमिक मास दिया, दूसरे का एटॉमिक मास दे दिया, और उनकी परसेंटेज एबंडेंस पूछ ली जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक का परसेंटेज एबंडेंस मान ले कि x है, तो एक एलिमेंट यदि दो फॉर्म में पाया जा रहा है और एक फॉर्म का परसेंटेज, एक फॉर्म की जो परसेंटेज नेचर में है वो x है, तो दूसरे फॉर्म की परसेंटेज ऑब्वियस है 100 माइनस x होगा। तो उससे इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन, x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। That is how we solve the question based on fractional atomic mass.